Hello students, today we will discuss about frustum, what is frustum and what is its lateral surface area, cut surface area, volume and slant height of frustum. Then let's see first what is frustum. Suppose it is a cone, ये हमारे पास एक cone है. It is cone, right circular cone it is, and it is cut by a plane parallel to the base. Base के parallel एक plane के द्वारा काट दिया गया. It is cut from this by a plane. एक plane है base के parallel जिसके द्वारा ये काट दिया गया है. Then it remains, what this part remains, it remains a frustum. इसको क्या बोलेंगे हम? Frustum और truncated cone. क्या कहेंगे? It is truncated cone. What it is height of complete cone. ये क्या थी हमारे पास? Complete cone की height थी. And it is radius of removed part. ये part अगर हम कहें remove कर दिया गया ऊपर का part, तो नीचे क्या बचता है? फ्रस्टम. जो फ्रस्टम के लिए हम डायमेंशन यूज करेंगे वो होगी हमारे पास L slant height, R1 base radius, R2 another radius and H height. Then suppose R1, R2. In frustum base and top radii are different. फ्रस्टम में क्या होता है? बेस और टॉप रेडाई डिफरेंट होते हैं. इट इज जस्ट लाइक ग्लास और बैकेट. बैकेट की तरह से हम कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट बैकेट. बैकेट भी हम कह सकते हैं. इट इज हाइट एंड इट इज L. लेट टोटल स्लैंट हाइट, जो टोटल स्लैंट हाइट है दैट इज L1. बड़े कोन की जो स्लैंट हाइट है, कंप्लीट कोन की जो स्लैंट हाइट है दैट इज L1 एंड हाइट ऑफ कंप्लीट कोन दैट इज H1. वर्टिकल हाइट इट इज एंड इट इज H2. H2 इज हाइट ऑफ रिमूव्ड पार्ट. रिमूव्ड पार्ट की हाइट हमने H2 मान ली और रिमूव्ड पार्ट की स्लैंट हाइट हमने क्या मान ली? L2. सपोज दिस पॉइंट्स आर A, B, C. हमारे पास ये क्या है? ABC और ये क्या है? AD. ट्राइंगल इमेजिन करें हम. These are two triangles and both are right triangle. Why they are right triangle? Because height is perpendicular to radius. क्योंकि height जो होती है वो radius पे क्या होती है? Perpendicular होती है. Now we will say that triangles are similar. ये triangles हमारे पास क्या है? Similar हैं. Why these triangles are similar? ये triangles similar क्यों है? If in two triangles, we know if in two triangles, two corresponding angles are equal, then third will be naturally equal. Then we take, if two are equal, then all three will be equal. And if angles are equal, triangles will be similar. Angles अगर equal हो तो triangles को क्या कहते हैं? हम similar कहते हैं. Here triangle ABC. Triangle ABC is similar to triangle AD. Why ABC is similar to AD? Because its angle B90, its D90, and angle A is common. Angle A हमारे पास क्या है? Common, and these are corresponding angles because these lines are parallel. So all angles are equal, then we say triangles are similar. By which rule? By angle rule of similarity. When triangles are similar, जब triangle congruent होती है तो हम क्या कहते हैं? Sides will be equal. But when triangles are similar, जब triangles similar हो तो we say their corresponding sides will be in the same ratio. Yes, sides will be proportional. Sides क्या होंगी? Proportional होंगी. Its side is suppose AB. इसकी side मान लो मैं लेता हूँ क्या? AB. AB is H2. Then its side is AD. AD means H1. That is equal to its side is R2. Then R2 means BC. Then its side is DE. R1. That is its side is AC. Hypotenuse AC. AC is L2. Then it's L1. ये क्या हो गया हमारे पास? L1. It is relation between H2, H1, R2, R1 and L2, L1. Now we have to find curved surface area of this frustum. इस frustum का curved surface area निकालना है, and we know what is curved surface area of cone. cone का curved surface area क्या होता है? पाई RL. अगर फिगर को ध्यान से देखें आप, अगर मैं कंप्लीट जो कोन है उसके कर्व सरफेस एरिया में से ऊपर का पार्ट रिमूव कर दूं, पूरे कोन में से ऊपर का पार्ट रिमूव कर दूं, तो व्हाट विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट. जो रिमेनिंग पार्ट का कर्व सरफेस एरिया वो क्या होगा? पूरे कोन का कर्व सरफेस एरिया, उसमें से इतने पार्ट का रिमूव कर दिया, किस पार्ट का बचेगा? दैट इज ए फ्रस्टम. तो पूरे कोन का कर्व सरफेस एरिया, पूरे कोन की जो हमारे पास रेडियस है वो R1 है एंड स्लैंट हाइट है वो L1 है. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉल कोन का कर्व सरफेस एरिया. रेडियस R2 है, स्लैंट हाइट L2 है. तो कर्व सरफेस एरिया व्हाट बिकम्स? कर्व सरफेस एरिया that becomes curved surface area of total cone. Total cone का curved surface area pi R1 L1 minus small cone pi R2 L2. Pi R2 L2. That is equal to, we can write pi common R1 L1 minus R2 L2. R1 L1 minus R2 L2. Now we have to remove, जो हमारे पास फ्रस्टम के डायमेंशन है उनमें क्या है? R1 R2 है, L and H है. L1 and L2 are not there, तो हमें L1 L2 को रिमूव करना है. वी कैन राइट L1. हम L1 को क्या लिख सकते हैं? L1 is L plus L2.
L1 को लिखते हैं हम L plus L2, then that becomes R1 L plus L2 minus R2 L2, it becomes, that is pi into R1L plus R1L2 minus R2L2, or L2 is common, pi into R1L plus L2 common, it remains R1 minus R2. ये क्या बचता है हमारे पास, R1L प्लस L2 कॉमन R1 माइनस R2. अब हमें इस L2 को भी रिमूव करना है यहाँ से, मीन्स L2 को हमें चेंज करना है किस टर्म्स में, L की टर्म्स में, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, प्रश्न में जो डायमेंशन है वो R1, R2, L और H हैं. तो R1, R2 तो है हमारे पास, L भी यहाँ पे आ गई. इस L2 को रिमूव करना है, L1 रिमूव हो चुका. तो L2 को रिमूव कहाँ से करेंगे, इस रिलेशन से हम रिमूव करेंगे. हम क्या लिख सकते हैं इसको, R1L2, अगर इन दोनों को ले हम, इट बिकम्स R1L2 दैट इज इक्वल टू R1L2 दैट इज इक्वल टू R2L1, एंड R1L2 दैट इज इक्वल टू R2L1 इज L प्लस L2. ये क्या बनता है हमारे पास, L प्लस L2, एंड इट बिकम्स, ये हमारे पास बनता है R1L2 दैट इज इक्वल टू R2L प्लस R2L2 एंड अगर मैं R2L2 को इस साइड में ले आऊं लेफ्ट साइड में, तो L2 कॉमन R1 माइनस R2 दैट इज इक्वल टू R2L. क्या आ गया हमारे पास, L2 इंटू R1 माइनस R2 दैट इज इक्वल टू R2L, देन दैट बिकम्स पाई R1L प्लस, कंप्लीट इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, L2 इंटू R1 माइनस R2, L2 इंटू R1 माइनस R2, वी कैन पुट R2L. क्या रख सकते हैं इसकी जगह, R2L. पाई L कॉमन, व्हाट रिमेन्स, R1 प्लस R2. इट बिकम्स फॉर्मूला टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन. ये हमारे पास क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया किसका, जो फ्रस्टम है हमारे पास उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने का. जो फ्रस्टम है, इट इज ए फ्रस्टम, इट्स बेस एंड टॉप रेडाई आर R1 R2, स्लैंट हाइट इज L, देन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी पाई L इंटू R1 प्लस R2. हमें फार्मूले में केवल डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है. तो ये फार्मूला ड्राइव हो गया फॉर फाइंडिंग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन. एक बार फिर से देखिए, मैंने कुछ इसमें नया नहीं किया, मैंने अप्लाई किया फॉर्मूला टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने का ही फॉर्मूला अप्लाई किया है, दैट इज पाई RL होता है, रेडियस R1 है और स्लैंट हाइट L1 है, किसकी, बिग कोन की. उसमें से स्मॉल कोन रिमूव कर दिया और हमने L1 और L2 को रिमूव किया. L1 को पहले L और L2 की टर्म्स में लिखा, हमारे पास L2 को फिर रिमूव करना है. तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया जहां से हमने ट्राइंगल्स क्या की थी, सिमिलर की थी. तो वहां से हमारे पास आ जाएगा L2 इंटू R1 इंटू R2 इज इक्वल टू R2L. वो हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, दैट इज पाई L इंटू R1 प्लस R2. इट इज कर्व्ड सरफेस एरिया. नाउ लेट्स सी व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया मींस, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, एड एरिया ऑफ बेस. टॉप तो इसमें है ही नहीं, टॉप डजंट, सॉरी इट इज फ्रस्टम. कौन में टॉप नहीं है, लेकिन फ्रस्टम में तो बेस भी है और टॉप भी है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस का और टॉप का एरिया ऐड कर दे तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया पाई L इंटू R1 प्लस R2. बेस एंड टॉप आर सर्कल्स, दे आर नॉट ऑफ सेम रेडियस, सेम रेडियस के नहीं है, दे आर ऑफ डिफरेंट रेडाई, डिफरेंट रेडाई के हैं. तो क्या होगा, बेस एरिया पाई R1 स्क्वायर प्लस टॉप एरिया पाई R2 स्क्वायर. तो एड pi R1 square plus pi R2 square. It is total surface area of frustum of a cone. It is curved surface area and it is total surface area. Curved surface area is pi L into R1 R2, R1 plus R2. अगर L known है, slant height known है, base radii and top radii are known, then we can find curved surface area. Same. If base radii, top radii and L are given, then we can find total surface area. These are two formulas to find curved surface area and total surface area. Now let's see what is volume of frustum of a cone. देखते हैं कौन का जो फ्रस्टम है उसका वॉल्यूम क्या होगा, और सिंपली यू कैन से व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ बैकेट. बैकेट का वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ ए बैकेट, या ग्लास की कैपेसिटी या बैकेट की कैपेसिटी, या हम कहें ट्रंकेटेड कोन कहें या हम कहें फ्रस्टम, ऑल आर सेम, सभी कहें सेम चीजें ही हैं. तो यहाँ पे अब हम लेंगे रिलेशन किसमें, वॉल्यूम में.
तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम? फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ बिग कॉन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कॉन। बड़े कॉन के वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ बिग कॉन माइनस स्मॉल रिमूव कर दें, व्हाट रिमेन्स? फ्रस्टम रिमेन्स। तो बिग कॉन का वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई r square h। हियर radius of big cone is r1 and height of big cone is h1, so it becomes 1/3 pi r1 square h1 volume of big cone minus 1/3 pi r2 square h2, it is volume of small cone। big cone में से हमने small cone को क्या किया? रिमूव कर दिया। अब हमें h1 और h2 नहीं चाहिए। जो फ्रस्टम हमारे पास उसमें r1 r2 है और क्या है? h है हाइट। h1 h2 उसका पार्ट नहीं है, तो h1 h2 को यहां से हमें रिप्लेस करना है। किसकी टर्म्स में लाना है? h की टर्म्स में लाना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज कॉमन? 1/3 पाई कॉमन। व्हाट रिमेन्स? r1 स्क्वायर इंटू h को हमें रिमूव h1 को हमें रिमूव करना है। वी कैन राइट h1 h प्लस h2 उसी टर्म्स में जो हमने सरफेस एरिया के लिए किया। h प्लस h2 वी कैन राइट h1 को हम लिख सकते हैं माइनस 1/3 pi common, what remains? r2 square h2, it is 1/3 pi into r1 square h plus r1 square h2 minus r2 square h2। what is common? h2 is common, 1/3 pi into r1 square h प्लस h2 कॉमन, व्हाट रिमेन्स? r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। क्या बचता है हमारे पास? r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। 1/3 पाई, अगेन वी कैन सिंप्लीफाई इट, r1 स्क्वायर h प्लस h2 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट इज a माइनस b, r1 माइनस r2 इंटू a प्लस b, r1 प्लस r2 इट इज। तो ये अब हम वैल्यू निकाल लें, h2 को रिमूव करना है। h2 को कैसे रिमूव करेंगे? जैसे हमने L1 को L2 को रिमूव किया था। अब रिलेशन ले लें R2 R1 और H2 H1 के बीच में। व्हाट बिकम्स इट इज? ये क्या बन जाता है हमारे पास? अगर मल्टीप्लाई करूं मैं तो H1 R2 दैट इज इक्वल टू R1 H2 एंड H1 R2। H1 को मैंने क्या लिखा? H1 को हम क्या लिख सकते हैं? H1 कैन बी रिटन, H1 को हम लिख सकते हैं H प्लस H2 R2 दैट इज इक्वल टू R1 H2 एंड इफ वी सिंप्लीफाई मोर, इसको और सिंप्लीफाई करें तो इट इज R2H प्लस R2H2 दैट इज इक्वल टू R1 H2 और इट बिकम्स, ये बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा? इट बिकम्स R2H2 को उस साइड ले जाएंगे, R2H2 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा? R2H दैट इज इक्वल टू R2H2 साइड जाएगा हमारे पास तो H2 कॉमन होगा, दैट रिमेन्स R1 माइनस R2। क्या बचता है हमारे पास? R1 माइनस R2। अब H2 इंटू R1 माइनस R2, यहां पे भी H2 इंटू R1 माइनस R2 था, इसके सिंपली वी हैव टू पुट R2H, इट बिकम्स 1/3 पाई इंटू R1 स्क्वायर H प्लस इन प्लेस ऑफ H2 इंटू R1 माइनस R2, H2 इंटू R1 माइनस R2 की जगह क्या रखना है? R2H इंटू R1 प्लस R2। H कॉमन है, H यहाँ पे भी H कॉमन, 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर, इट बिकम्स वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास किसका? फ्रस्टम ऑफ कोन के वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर। डायमेंशन जो हमारे पास फ्रस्टम की, बेस रेडाई एंड टॉप रेडाई R1 R2 एंड हाइट इज h। हाइट हमारे पास क्या है? h है, तो वॉल्यूम उस फ्रस्टम का क्या होगा? 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर। एक बार फिर से देखें क्या किया हमने? बिग कोन के वॉल्यूम में से स्मॉल कोन का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट किया है और उसको क्या करते गए? हम सिंप्लीफाई करते गए। सिंप्लीफाई किस सेंस में करते गए? H1 H2 को रिमूव करना है हमें, ये ध्यान में रखते हैं हम करते गए। पहले H1 को रिमूव कर दिया, H प्लस H2, फिर हमारे पास बच गया H2। H2 का हमने रिलेशन निकाली है यहाँ से, जो हमने ट्रायंगल सिमिलर की थी तो साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम। तो इन दोनों को लिया हमने, फर्स्ट टू पार्ट्स को, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां से फिर H1 को चेंज किया मैंने H प्लस H2 और यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली? H2 इंटू R1 माइनस R2 की वैल्यू आ गई मेरे पास R2H, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी और हमारे पास क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया सिंप्लीफाई करते ही। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन क्या हो गया? 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर। नाउ लेट्स सी
If R1 is given, base radii is given, top radius is given R2 and height, vertical height of frustum is given, then how we'll find L? Slant height कैसे find करेंगे? Means हमारे पास यहाँ पे 4 unknown terms है frustum में, which 4 unknown terms? Base and top radii, vertical height and slant height. If any 3 are given, उनमें से कोई 3 given है, then we can find fourth हम find कर सकते हैं. Let's see how कैसे find करेंगे. इसको आप केवल आप फिगर में बना रहा हूं किसकी, फ्रस्टम की. इट इज फ्रस्टम ऑफ ए कॉन. ये क्या हमारे पास एक फ्रस्टम है कॉन का. फ्रस्टम ऑफ कॉन में क्या होता है, बेस रेडाई एंड टॉप रेडाई आर डिफरेंट. बेस एंड टॉप रेडाई क्या होंगी, उसमें हमारी डिफरेंट होंगी. इट इज R1, ये हमारे पास क्या है R1 एंड इट इज R2, ये मेरे पास क्या है R2. सपोज A B C D, इट इज H वर्टिकल हाइट एंड इट इज L स्लैंट हाइट. अगर मैं D से फ्रॉम D ड्रा परपेंडिकुलर ऑन BC, ये पहले ही परपेंडिकुलर था, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन हाइट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, दैट विल बी पैरेलल, और ये पहले ही पैरेलल थी, एंगल 90 है, इट विल बी अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल है, क्या बन गया मेरे पास H, सपोज इट इज E, ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, D परपेंडिकुलर है BC पे. इट इज रेक्टेंगल है, तो ये क्या बनता है R2. देन व्हाट दिस पार्ट रिमेन्स, ये पार्ट क्या बचता है मेरे पास, कंप्लीट R1 था, ये R2 था, R1 माइनस R2. पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई कर दें तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. देन व्हाट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, L स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर H स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर R1 माइनस R2 होल स्क्वायर. और सिंपली L इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्योंकि ये क्या है हमारे पास लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. तो क्या हो जाएगा H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है. याद रखना है मीन्स रटना नहीं है. कब याद रहेगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रह जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी. तो इट इज L इज लेंथ हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कॉन इज स्क्वायर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर. इट इज लेंथ हाइट ऑफ ए कॉन. एक बार फिर से मैं फॉर्मूले आपको लिख के दे रहा हूं. कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कॉन व्हेन बेस एंड टॉप रेडाई आर R1 R2 and slant height is L and vertical height is H, what it will be, curved surface area is pi L into R1 plus R2. What is total surface area? Total surface area of cone is, that is pi L into R1 plus R2, curved surface area plus area of base and top. Base area pi R1 square plus top area pi R2 square. It is total surface area. What is volume? Volume of frustum of a cone, it is 1 upon 3 pi H into R1 square plus R1 R2 plus R2 square. It is total, it is volume of frustum of a cone. ये हमारे पास क्या होगा, कौन के फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा. तो इस जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा फ्रस्टम पार्ट है. इस फ्रस्टम पार्ट में आपको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकालना है. डाटा गिवन है, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है. एक चीज और याद दिला दूं आपको कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ 9th क्लास. 9th क्लास के सिलेबस में पार्ट नहीं, इट इज इन 10th क्लास. लेकिन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी और फाउंडेशन के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं. तो हमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे भी जाना पड़ेगा, कन्वर्सन ऑफ वन सॉलिड इनटू अनदर पे भी जाना पड़ेगा, और हमें फ्रस्टम पे भी जाना पड़ेगा, हमें प्रिज्म पे भी जाना पड़ेगा. प्रिज्म क्या होता है, दैट में बी ट्रायंगुलर प्रिज्म, दैट में बी रेक्टेंगुलर प्रिज्म, दैट में बी स्क्वायर प्रिज्म. प्रिज्म में भी क्या होगा, साइड सरफेसेस रेक्टेंगल होंगे, बेस एंड टॉप आइडेंटिकल होंगे, दैट में बी ट्रायंगल्स, दैट में बी स्क्वायर्स, दैट में बी रेक्टेंगल्स. तो उनका सरफेस एरिया हमारे पास क्या बन जाएगा, व्हाट बिकम सरफेस एरिया. सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, तो जो लेटरल पार्ट में रेक्टेंगल्स हैं उनका सरफेस एरिया बनेगा. बेस एंड टॉप एरिया जो भी फिगर दी हुई है वो ऐड कर देंगे. बेस ट्रायंगुलर भी हो सकता है, मैंने बताया, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, कोई भी बेस हो सकता है, पेंटागन भी हो सकती है, हेक्सागन भी हो सकती है. और वॉल्यूम प्रिज्म का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड इन विच बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल, उसका वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. और वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड इन विच देयर इज बेस बट नॉट टॉप, जिसमें बेस तो है लेकिन टॉप नहीं, टॉप इज ए पॉइंट, 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट, उसका वॉल्यूम होगा 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट. नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्रस्टम. फ्रस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं अभी. लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन हम देखें, कह रहा है कि द रेडाई ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ ए frustum of height 6 cm and of height 6 cm are 14 cm and 6 cm again respectively. कह रहा है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. एक फ्रस्टम ऑफ कोन दे रखा है, इट इज फ्रस्टम ऑफ कोन एंड इट्स बेस एंड टॉप रेडाई आर गिवन एंड हाइट इज आल्सो गिवन. कह रहा है कि रेडाई ऑफ
बोथ द एंड्स आर 14 एंड 6 ऑफ हाइट 6। हाइट भी क्या है इसकी 6। हाइट वर्ड में यूज किया है यहाँ पे। हाइट वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया था, व्हेन देयर इज वर्ड हाइट, हाइट मींस वर्टिकल हाइट। फॉर स्लेंट हाइट देयर विल बी वर्ड स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट के लिए आपको स्लेंट हाइट वर्ड मिलेगा। इट इज h, it is r1, it is r2 and it is l in frustum. So here what are given, h is 6 centimeter, height of frustum is 6 centimeter and base and top radii are 14 centimeter and 6 centimeter again, that are top radii हमारे पास क्या हो गई, sorry base radii r1 that is 14 centimeter and r2 is 6 centimeter. We have to find curved surface area. कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों ही हमें फाइंड करने हैं। तो दोनों फाइंड करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा क्या, एल फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड एल। व्हाट इज एल, व्हेन r1 r2 एंड h आर गिवन। तो एल अभी मैंने फॉर्मूला किया था, एल इज h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर। h इज हियर, h हमारे पास यहाँ पे क्या है 36। क्यों है 30, h is 6 then h square becomes 36. r1 minus r2 14 minus 6 what remains 8 and 8 square 64, it is 100 and 100 square root क्या बनेगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। l भी नोन हो गया मेरे लिए r1 भी नोन हो गया, मेरे लिए r2 भी नोन हो गया। we have to find curved surface area. curved surface area becomes, curved surface area क्या बनता है यहाँ पे, pi l into r1 plus r2, pi l into r1 plus r2। तो पाई एल, पाई अब यहाँ पे आप देखें एल है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, r1 प्लस r2 20 बनता है वो भी 7 का मल्टीपल नहीं है। तो हमारे लिए इजी रहेगा पाई लेना क्या 3.14 इंटू एल 10 एंड r1 प्लस r2 14 प्लस 6 इट बिकम्स 20। क्या बनता है 20। 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है हमारे पास 31.4 और 20 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल फिर हट जाएगा, 2 जीरो है हमारे पास प्रोडक्ट में। आप एक बार ऐसे लिख लें इंटू 2 इंटू 100, 20 इंटू 10, 200 को मैंने लिखा 2 इंटू 100 क्या होगा हमारे लिए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 3.14 को अगर 100 से मल्टीप्लाई मैं करता हूं तो दैट इज 314 और 314 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो दैट बिकम्स 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस फ्रस्टम। फ्रस्टम का क्या हो गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया 628, इसमें ऐड एरिया ऑफ बेस एंड टॉप, बेस और टॉप का एरिया ऐड कर दें या फिर से फार्मूला अप्लाई कर दें। तो बेस का एरिया पाई r1 स्क्वायर और टॉप का एरिया पाई r2 स्क्वायर। इट बिकम्स 628 प्लस पाई कॉमन r1 स्क्वायर 14 स्क्वायर 196, 6 स्क्वायर 36, 196 plus 36 what becomes 6 6 12 and 3 और 2 232 it becomes। तो इट इज 628 प्लस पाई। अब पाई क्या ले हम 22/7 ले या 3.14 ले। अगर ये 7 का मल्टीपल है तो हम पाई क्या ले लेंगे 22/7 लेंगे। अदरवाइज वी कैन टेक 3.14 कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग करने के लिए। इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 7, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे पाई को 3.14 इंटू जो r1 स्क्वायर प्लस r2 आया वो हमारे पास कितना आया 232। 3.14 को मल्टीप्लाई करें 232 से और उसमें 620 ऐड कर दें, दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फ्रस्टम। ये फ्रस्टम का क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब जो सॉलिड्स हमने पढ़े क्यूबॉइड पढ़ा, क्यूब पढ़ा, सिलेंडर पढ़ा, कोन पढ़ा, स्फीयर हेमिस्फीयर पढ़ा, उनमें फार्मूले हमने किए। ये उससे भी इजी है अगर देखें तो उससे भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। डे टू डे लाइफ से रिलेटेड कैसे बात आती है वो भी तो रिलेटेड थे भाई सच में। लेकिन इसमें क्या है बैकेट हम डेली यूज करते हैं, ग्लास हम डेली यूज करते हैं, जस्ट लाइक ए बैकेट जस्ट लाइक ए ग्लास। जैसे घर पे पेरेंट्स पूछ लेते हैं कई बार कि भाई बच्चा कितना टैलेंटेड है, आपसे पूछे बैकेट में कितना पानी है, यू कैन मेजर, आप मेजर कर सकते हो किस फार्मूला से, बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा फ्रस्टम का 1/3 पाई h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू प्लस r2 स्क्वायर।
दैट विल बी वॉल्यूम। अगर हमारे पास बेस टॉप प्रोडाक्ट नहीं है, हम मेजर कर सकते हैं बैकेट की को और हाइट भी मेजर कर सकते हैं, तो उसकी कैपेसिटी हम इजीली निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके लिए प्रैक्टिकल वर्क हो जाएगा घर पे कि कोई बैकेट ली, हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया और जो हमारे पास मेजर है, मेजर मीन्स जैसे लीटर मेजर करते हैं उस प्रकार से उसको मेजर कर लें और इस फार्मूले से भी मेजर करें, दैट विल बी इक्वल, वो एक एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट आप करके देखें। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी रिलेटेड है। ये ड्रिंकिंग ग्लास वाटर इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। करेक्ट, ग्लास है, ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन of height 14 centimeter. The diameter of the two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the area of sheet used to make the glass and its volume. वॉल्यूम भी फाइंड करना है, कितनी सीट उसमें यूज हुई वो भी निकालना है। तो अभी तक मैं फ्रस्टम ले रहा था, बेस रेडियस को ज्यादा ले रहा था। ग्लास में टॉप रेडियस ज्यादा होती है, बैकेट में टॉप रेडियस ज्यादा होती है, तो हम इन्वर्टेड ले लें, इसको ऊपर की तरफ ले लें। ये हो गया, इट इज ए बैकेट और ए ग्लास। ये बैकेट कह सकते हैं हम, ग्लास कह सकते हैं। हियर व्हाट आर गिवन, क्या गिवन है हमारे पास? इट इज हाइट h, इट इज r1, इट इज r2। हाइट इज 14 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। r1 इज डायमीटर इज 4, कह रहा है इस ग्लास का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, टॉप डायमीटर, तो रेडियस कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। एंड बेस डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी? बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगी? 1 सेंटीमीटर। तो हमें निकालनी है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है। एरिया ऑफ सीट यूज टू मेक इट। अब ग्लास है, ग्लास ऊपर से ओपन होगा, तो एरिया ऑफ सीट निकालेंगे। तो सीट किस में लगी है? लेटरल पार्ट में लगी है, और किस में लगी है? बेस में लगी है। ग्लास इज ओपन फ्रॉम द टॉप, टॉप से क्या है हमारे पास? ओपन है। तो एरिया ऑफ सीट, एरिया ऑफ सीट निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा? एल चाहिएगा। तो फर्स्ट वी विल फाइंड एल। एल मींस स्लैंट हाइट। क्या निकालेंगे? स्लैंट हाइट। एल विल बी, वही फार्मूला 2, 3 बार 4 बार क्वेश्चंस में आप फार्मूला लिख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ध्यान में रह जाएगा। एल स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, दैट इज h square plus r1 minus r2 whole square, that is h square 14 square 196 plus r1 minus r2 2 minus 1, what remains? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 196 plus 1, it is 197, and 197 approximately L is 197, it is very near to 14 square, 14 square के नियरेस्ट है, तो 14 पॉइंट समथिंग, 14.02 ले लिया, 01 ले लिया। आप इसको सोल्व करके देखेंगे, पहले निकालेंगे सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सीट, एरिया ऑफ सीट यूज टू मेक इट, इसको बनाने के लिए जो सीट का यूज हुआ वो सीट कितनी आएगी हमारे पास? दैट विल बी, कर्ड पार्ट में सीट लगी, किस में लगी है? कर्ड पार्ट में, और बेस में, ऊपर से ओपन है, तो कर्ड पार्ट पाई एल इंटू r1 प्लस r2 प्लस बेस स्मॉल रेडियस क्या आएगा? पाई r2 स्क्वायर। क्या बनेगा? पाई r2 स्क्वायर। दैट बिकम्स, पाई कॉमन ले ले हम, अगर L इंटू r1 प्लस r2, L मेरे पास कितना है? L आई हैव 14.02, आई हैव टेकन 14.02 इंटू r1 प्लस r2, 2 प्लस 1 इट इज 3। ये हो गया L इंटू r1 प्लस r2, पाई तो कॉमन ले लिया था मैंने। r2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस अगेन 1, पाई इंटू 14.02 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना बनता है? 42.06 प्लस 1, और इट इज पाई 3.14 इंटू 43.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3.14 को 43.06 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी एरिया ऑफ सीट यूज टू मेक द ग्लास। इस ग्लास को बनाने में जो सीट लगी, मेटल का ग्लास बना है, स्टील का बना है, किसका बना है? कॉपर का बना है, जिसका भी बना है उसका हमारे पास जो एरिया आ गया वो क्या आया? 3.14 इंटू 43.06। किससे निकाला? एक बार फार्मूला फिर से देख ले। पहले हमने स्लैंट हाइट निकाली, फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, कर्ड पार्ट प्लस एरिया ऑफ बेस, ओपन फ्रॉम द टॉप, टॉप से क्या ये? ओपन। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम निकालना है। व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम? जो ग्लास का वॉल्यूम होगा, ग्लास की कैपेसिटी होगी, वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम, इसका फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू, फार्मूला टू फाइंड वॉल्यूम, 1/3 पाई h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस r2 स्क्वायर, 1/3 पाई h, h we have 14,
14 इंटू R1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 प्लस R1 R2 2 इंटू 1 2 प्लस R2 स्क्वायर क्या बनता है हमारे पास 1 अपॉन 3 टेक पाई एज 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 7 7 से 7 कैंसिल हो गया 14 इंटू 22 14 2 जा 28 and 14 2 जा 28 plus 2 30 upon 3 that is 102.666 or 67 cubic centimeter approximately. So what is volume of this frustum? Yeah, volume of this glass that is 102.67 cubic centimeter respectively. Formula to find volume. Volume find करने का formula क्या था हमारे पास 1/3 pi h into r1 square plus r1 r2 plus r2 square. Let's see one more question. frustum से related एक question और देखते हैं. कह रहा है एक cone, right circular cone is cut by a plane. plane से काट दिया parallel to its base. above some height, किसी height से. Total height of this cone is given and volume of big cone is given. Then we have to find at what height this section has been made. क्वेश्चन जब मैं फिगर बनाऊंगा तो आपको स्टेटमेंट भी समझ में आ जाएगी. इट इज ए राइट सर्कुलर कॉन. ये मेरे पास एक राइट सर्कुलर कॉन है. इट इज राइट सर्कुलर कॉन एंड इट इज कट बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस. बेस के पैरेलल एक प्लेन के द्वारा काट दिया गया है. एंड वॉल्यूम ऑफ दिस रिमूव्ड पार्ट, जो छोटा कोन बचा ऊपर कोन बचा हमारे पास, उसका वॉल्यूम ऑफ रिमूव्ड पार्ट इज 1/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिग कोन. पूरे कोन के वॉल्यूम का 1/27 पार्ट है इस छोटे कोन का वॉल्यूम. टोटल हाइट हमारे पास कितने दे रखी है? सपोज दैट इज h एंड इट इज 30. कितने दे रखी है? 30. वही चीज जो स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वही डाटा हम ले लें. It is triangle ABC. It is ADE. ABC, ADE are both are right triangle. Angle A common, तो triangles will be similar by angle. Angle rule of similarity. हम मान लें कि this height is H1 and this is H2. ये क्या मान ली? H2. It is R1 and it is R2. वॉल्यूम में रिलेशन दिया हुआ है. What is वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल कोन? इस स्मॉल कोन का वॉल्यूम, स्मॉल कोन की रेडियस क्या है? R2, हाइट क्या है? H2. तो इस स्मॉल कोन का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2. कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है. तो यहाँ पे R R2 है और H क्या है? H2. दैट इज 1/27 वॉल्यूम ऑफ बिग कोन 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1. R1 स्क्वायर ये कंप्लीट हाइट मैंने क्या मान ली? H1. We have to find above base. At what height above base this section has been made? Base से कितनी ऊंचाई से वो कोण काटा गया? कितनी ऊंचाई से काटा गया? H1. We have to find value of H1. H1 की वैल्यू निकालनी है. टेक दिस H. इसको क्या ले लें हम? H ले लें क्योंकि H1 तो हमने ये ले रखा है. तो बिग कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये H ही बन जाएगा. हमें H1 तो निकालना है. तो H1 कब आएगा? टोटल हाइट हमारे पास 30 है. हम H2 निकाल लें. 30 माइनस H2 क्या बचेगा हमारे पास? H1 बचेगा. अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 1/3 पाई से 1/3 पाई क्या हो रहा है? कैंसिल. वी कैन राइट इट एज R2 स्क्वायर H2 upon R1 square H, that is equal to 1/27. Or we can write R2 square upon R1 square into H2 upon H, that is equal to 1/27. वो क्या बनता है हमारे पास? 1/27. अब R2 R1 हम रिलेशन निकाल रहे हैं. पहले भी मैंने किया था. ट्राइंगल एबीसी, फिगर को ध्यान से देखें. ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एडीई. एबीसी किसके सिमिलर होगी? एडीई के सिमिलर होगी. व्हाई दे आर सिमिलर? इफ टू एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. तो ट्राइंगल्स क्या होंगे हमारे पास? सिमिलर. यहाँ पे एंगल्स कौन से इक्वल हैं? इट्स एंगल D90, इट्स एंगल B90 एंड एंगल ए कॉमन. और ये वैसे भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. या थर्ड एंगल हम कहते हैं टू एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड विल बी नेचुरली इक्वल. थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे. तो यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल. अगर इसका बेस R2 है तो उसका बेस क्या है? R1. तो R2 अपॉन R1 दैट इज इक्वल टू, इसकी अगर स्मॉल ट्राइंगल के हम ऊपर साइड ले रहे हैं, इसकी हाइट अगर H2 है तो कंप्लीट की हाइट क्या है हमारे पास? H है. तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू H2 अपॉन H. तो रिप्लेस कर सकते हैं हम किसको? R2 अपॉन R1 को किससे रिप्लेस करते हैं? H2 अपॉन H. इट बिकम्स R2 अपॉन R1 होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास बन जाएगा R2 स्क्वायर है, R1 स्क्वायर है. तो ये कंप्लीट क्या बन जाता है? R2 अपॉन R1 होल स्क्वायर. R2 अपॉन R1 को हम क्या लिख सकते हैं? H2 अपॉन H होल स्क्वायर. R2 अपॉन R1 की जगह मैंने क्या रख दिया? H2 अपॉन H रख दिया और स्क्वायर था तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया. इंटू H2 अपॉन H
दैट इज इक्वल टू 1/27 और इट बिकम्स, ये क्या बन जाता है, सेम है दोनों हमारे पास, a स्क्वायर इंटू a क्या बन जाएगा a क्यूब, तो h2/h³ दैट इज इक्वल टू वी कैन राइट 1/3 और इसको फिर से सिंप्लीफाई करें तो दोनों साइड देखें क्यूब रूट या क्यूब कहें हम, रिमूव हो जाएगा, व्हाट रिमेन्स h2/h, h इज टोटल हाइट दैट इज 30, वो 30 गिवन है, दैट इज 1/3, 3 से कैंसिल हो गया, 10 पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो h2 मेरे पास क्या आया, h2 कम्स 10, h2 मेरे पास क्या आया 10। फिर से देखें एक बार, मैंने क्या किया, इसने गिवन था कि जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन है, वॉल्यूम ऑफ रिमूव्ड पार्ट है जो काट के हटा दिया गया है, उसका वॉल्यूम क्या है, दैट इज 1/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिग कोन, तो मैंने वो रिलेशन ले लिया, 1/3 पाई दोनों साइड रिमूव हो गया, उन टर्म्स को मैं इसके अपॉन में ले आया तो हमारे पास आ गया r2/r1² इंटू h2/h दैट इज 1/27। मैंने ट्रायंगल्स को सिमिलर किया, तो r2/r1 आ गया मेरे पास h2/h, r2/r1 की जगह h2/h रखा तो सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया h2/h, h इज 30 दैट इज 1/3, तो यहाँ से h की वैल्यू गिवन थी, दो अननोन टर्म्स हो गई थी h2 और h नोन है तो h2 हमारे पास आ गया कितना 10, जो रिमूव्ड पार्ट है उसकी हाइट 10 आ गई, तो जो पार्ट बच गया वो क्या बची 20, तो कितने ऊपर से इस कोन को, स्मॉल कोन को रिमूव किया गया था एट ए हाइट ऑफ 20, h1 क्या आ जाता है मेरे पास, h1 इज h माइनस h2, h माइनस h2 30 माइनस 10 तो h1 इज 20, तो इसने पूछा था एट व्हाट हाइट दिस सेक्शन हैज बीन मेड, दिस सेक्शन हैज बीन मेड एट ए हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, सेक्शन कितने ऊपर बनाया गया है, ये कौन कितने ऊपर से काटा गया है, दैट इज कट एट ए हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की हाइट से काटा गया है। देन स्टूडेंट्स मैं आज आपको कुछ असाइनमेंट्स दे रहा हूं, 10 to 20 क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू ऑन फ्रस्टम, you have to find in them surface area, lateral surface area, cut surface area, total surface area, volume, slant height, means घुमा फिरा के क्या होगा, किसी में तीन चीजें दी हुई है r1 r2 h दिया हुआ है, l निकालना है, किसी में r1 r2 l दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है तो h फाइंड करेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन से उनको सोल्व कीजिएगा, प्रॉब्लम आती है तो जरूर बोलिएगा, डाउट्स भेजिएगा, वी विल डिस्कस देम इन नेक्स्ट लेक्चर, देन ओके, थैंक यू।